Good morning, students. The subject we are going to start is Industrial Pharmacy 1. What does it contain? Basically क्या है इसके अंदर हम पढ़ेंगे how tablets, how capsules, how parenterals, ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं. ठीक है, इसके अंदर हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. Our syllabus includes tablets, liquid orals, capsules, pellets, parenteral products, ophthalmics, cosmetics, aerosols, कौन से मटेरियल यूज होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल साइंस एंड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. First is, we will start is tablets. What are solid medicaments? Solid medicaments may be administered orally as powders, pills, cachets, capsules or tablets. These dosage forms contain a quantity of drug which is given as a single unit, and they are known collectively as solid unit dosage form. Even in the case of sustained action preparation, which technically contains an equivalent of several normal doses of drugs. तो बेटा बेसिकली क्या है, सॉलिड मेडिकेमेंट्स में क्या होते हैं, जैसे कैप्सूल्स आ गए, आपके टैबलेट्स आ गए, जो एक बारी में दवाई आपने ली और इंडिविजुअल यूज में आपने खा लिया. उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल डोजेज हों. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, जैसे इन्होंने समझाया है सस्टेन्ड एक्शन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल डोजेज होती हैं बट सिंगल यूनिट आपने एक बारी में कंज्यूम करना होता है. तो दिस इज अ सॉलिड मेडिकेमेंट. टैबलेट इज डिफाइंड as a compressed solid dosage form containing medicaments with or without excipients. According to the Indian Pharmacopoeia, pharmaceutical tablets are solid, flat, or bioconvex dishes, unit dosage forms prepared by compressing a drug or a mixture of drugs with or without diluents. तो बेसिकली टैबलेट क्या है, टैबलेट इज अ कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसको पंचेस के बीच में कंप्रेस किया जाता है और एक यूनिट डोजेज फॉर्म तैयार की जाती है, जो फ्लैट भी हो सकती है, बाइकॉन्वेक्स भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, जो आप शेप उसको देना चाहते हो उस शेप की वो मिल जाएगी. They vary in shape and differ greatly in size and weight depending on amount of medicinal powder substance and the intended mode of administration. तो क्या क्या डिफरेंस क्या क्या है, आप इनको वेरी कैसे कर सकते हो, कि आप एक चाहते हो कि आपने एक सर्कुलर शेप की देनी है, आप एक चाहते हो कि फ्लैट होना चाहिए, तो ये इस तरह से वेरी कर सकती हैं. अब उसके अंदर क्या है, मान लीजिए अमाउंट ज़्यादा है तो आपको उसी हिसाब से शेप देनी है, अगर अमाउंट कम है तो आपको उसी हिसाब से शेप देनी है. It is the most popular dosage form and 70% of the total medicines are dispensed in the form of tablet. All medicaments are available in tablet form except where it is difficult to formulate or administer. ठीक है, तो सब तरह के 70%, नॉर्मली 70% जो डोजेज फॉर्म है वो हमारे को इसी फॉर्म में मिलती है, टैबलेट फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर और इसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है. तो इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस ही नहीं कर सकते. मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कंप्रेस किया और वो साइड से बाहर निकल जाए, ठीक है, या वो आप कंप्रेस करने के लिए उसको डाला और वो लिक्विफाई हो गया, तो इस केस में आपको टैबलेट बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं. सो इन केसेस में आपको टैबलेट नहीं बनानी, उसके लिए आपको अदर टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करनी. The advantages of tablet dosage form are they are unit dosage form and offer the greatest capabilities of all oral dosage form for the greatest dose precision and the least content variability. Cost is lowest, lighter and compact, easiest and cheapest to package and strip, easy to swallow with least tendency of hang up. Sustained release product is possible by enteric coating. Objectionable odor, bitter taste can be removed or can be masked. Suitable for large scale production, and they have the greatest chemical and microbiological stability overall oral drug form में. Product identification is easy and rapid, requiring no additional step when employing an embossed or monogrammed punch face. तो पहला है, दे आर यूनिट डोजेज फॉर्म, एक सिंगल डोजेज फॉर्म है और इसके अंदर ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटीज हैं, सब सारे प्रिसीजन की जो डोज प्रिसीजन है इसके अंदर परफेक्ट होती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है. कॉस्ट सबसे कम होती है, लाइट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसको पैकेज करना बहुत ही आसान है. इट इज़ वेरी इजी टू स्वैलो. एक हैंगअप की टेंडेंसी इसके अंदर बहुत कम रहती है. हैंगअप मीन्स कि जैसे आप दवाई खाएं और वो वापस आने की, रुक जाए यहाँ पे गले में, दिस इज नोन एज हैंगअप. तो यहाँ पे रुकने की टेंडेंसी
टैबलेट्स के केस में कम होती है, कैप्सूल्स के केस में इट इज मच हायर। ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर हो या टेस्ट हो, उसको आप मास्क कर सकते हैं, मतलब आप उसको कोड कर दीजिए, तो वो ऑब्वियसली अगर आप उसके अंदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे तो आप उसको टेस्ट को फ्लेवर को मास्क कर सकते हैं, ऑर्डर को मास्क कर सकते हैं। और अगर आप उसको एंटेरिकली कोड कर देंगे तो आप उस केस में इसका जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, उसको भी मास्क कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इट इज़ वेरी सूटेबल। और जो केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी है ओवरऑल डोजेज फॉर्म में जो ओरल हैं उसके अंदर सबसे अच्छी इसकी टेबलेट की है। और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमने इसके ऊपर एम्बोसिंग करनी है, मोनोग्राम, जैसे आपने देखा होगा विक्स की टैबलेट पे वी इज एंग्रेव्ड, ठीक है, ऐसे ही अगर आपने वो करना हो तो इट इज़ वेरी इजी इन केस ऑफ टैबलेट्स। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, डिफिकल्ट टू स्वैलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन और अनकॉन्शियस पेशेंट, मींस अगर बच्चे को आपको देनी है तो वो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उस केस में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज पेरेंटल रूट। सम ड्रग्स resist compression into dense compacts owing to amorphous nature and low density character। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर amorphous होगा तो ऑब्वियसली उसको जब हम पंच करेंगे तो वो पंच को रेजिस्ट करेगा या वो पंच होगा ही नहीं, तो उस केस में हमारे को टैबलेट बनाने में दिक्कत आती है। Drugs with poor wetting, slow dissolution properties, optimal absorption, high in gastrointestinal tract may be difficult to formulate or manufacture as a tablet that will still provide adequate or full drug bioavailability. Bitter tasting drugs, drugs with an objectionable odor, or drugs that are sensitive to oxygen may require encapsulation या coating। ठीक है, तो ये सारी इसकी disadvantages। So today we will discuss this much only। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।